Hello students, in our previous video we have studied about Coulomb's law. Today we will study about Coulomb's law in vector form. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सपोज दैट आपके पास दो पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, दोनों सिमिलर नेचर के, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव। तो ये एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगाएंगे? Q1 के ऊपर Q2 रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इसको हम F12 फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। मींस द फोर्स ऑन Q1 by Q2 is F12 and the direction is in this direction. Again, the force on the charge Q2 due to Q1 is F21 and it is along this direction. Now, suppose that this R1 and R2 are the position vectors of the charge Q1 and Q2, and the distance between this Q1 and Q2 is R. Now, we can write the force F12 in vector form like that. We know the Coulomb's formula. We will apply the Coulomb's formula. Suppose that the two charges are kept in free space, so here we will take epsilon naught. Now, Q1 into Q2 upon this R. So here we will take the magnitude, and this R represents the magnitude of the distance between two charges. And for representing the direction, we will use a unit vector. So we have to take a vector in this direction. तो अब यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? R1 minus R2 upon mod of R1 minus R2. तो ये यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे? ये वाला टर्म लिखेंगे, ठीक है? या फिर इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में R21 हैट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम या तो ये लिख सकते हैं, और या तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं सिंपली R21 हैट। सो नाउ F21, अब F21 क्या होगा हमारा? हमको फॉर्मूला पता है। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर? 1R2 हैट। R12 हैट अब क्या होगा? R12 हैट अब क्या होगा? देखिए कैसे निकालते हैं R12 हैट? R12 that will be equal to R2 minus R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 minus R2, ऐसा निकाल, ठीक है? तो since we know R12 equals R2 vector minus R1 vector upon mod of R2 vector minus R1, and R21 is written R1 vector minus R2 vector upon mod of R1 minus R2. So from here you can see that R12, this is the unit vector. So unit vector R12 is equal to minus unit vector R21. If you will multiply here the terms by minus, you will get this term, or you will multiply this by minus, you will get this. And since this is mod, this is have no effect on the value. So because this is the resultant and magnitude only, so negative sign does not affect this. So from here now we see that
R12 unit vector and this R21 unit vector both are in opposite direction. Negative signs में वो both are in opposite direction. दोनों बिल्कुल ही उल्टे डायरेक्शन में 180 डिग्री पे है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है. एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा हमारा इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. तो हमको क्या मिल जाएगा अगर हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो R12 को माइनस R21 से अगर रिप्लेस कर दें तो हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा. अब यहाँ पे देखिए सारा कुछ सिमिलर है, ये वैल्यू पूरी सेम, बस यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड यूनिट होता है तो ये वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, बस केवल और केवल डायरेक्शन के बारे में बताता है. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. इसका मतलब फोर्स F12 is equal to minus F21 means both forces are in opposite direction. So from here we know that when there are two similar charges they repel each other, that the Coulomb's forces, the Coulombian forces obeys Newton's third law. We all know about Newton's third law. What is it? Every action has an equal and opposite reaction. It means if this charge will repel this charge with some force, this charge will also repel this charge with the same amount of. तो अब हम जानेंगे कि कूलॉम फोर्स का रेंज क्या होता है, मतलब कितनी दूरी से लेकर के कितनी दूरी तक हमारा कूलॉम फोर्स एप्लीकेबल है. So Coulomb force 10 to the power minus 15 मीटर से लेकर के very large possible distance means बहुत बड़ी से बड़ी डिस्टेंस, जैसे कि हमारी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मीन्स दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, एक बहुत ही बड़े रेंज तक एप्लीकेबल. बट अगर कोई डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 15 से कम हो, मतलब 10 टू द पावर माइनस 16, तो क्या यहाँ पे हमारा कूलॉम फोर्स एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, बिकॉज इनसाइड द न्यूक्लियस the Coulomb forces are not applicable, but outside the nucleus it is applicable. तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर कई तरह के और भी फोर्सेस होते हैं, जैसे कि हमारा वीक इंटरैक्शन फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स. ये दोनों फोर्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर लागू होते हैं. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कोलम्बियन फोर्स? वी सी दैट below 10 to the power minus 15 meter, our Coulombian force is not applicable. Means the distance is smaller than 10 to the power minus 15 meter, then the Coulomb force will not be applicable. One more thing, that our Coulomb force is only applicable when the 2 point charges are at rest. It is not applicable on the charges which are moving. Our next topic is permittivity. So what is permittivity? Permittivity is a property of the medium which determines the electric force between 2 point charges. इसका मतलब क्या है कि permittivity एक ऐसा फैक्टर है जो इस बात को तय करता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा. अगर हमारे 2 पॉइंट चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए, मतलब कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है. लेकिन अगर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स कम होने लगता है. फॉर एन एग्जांपल, अगर 2 पॉइंट चार्जेस जो फ्री स्पेस में रखे हुए हैं उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए F फोर्स लग रहा है, और उन पॉइंट चार्जेस को हम वाटर में रख दें, उन पॉइंट चार्जेस को हम वाटर में रख दें, तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स का
80 टाइम्स कम हो जाएगा, मींस F/80 हो जाएगा। इसका मतलब कि परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी हमारा फोर्स उतना कम होता जाएगा। सो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर दैट व्हाट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी is that property of the medium which determines the electric force between two medium. Our next topic is dielectric constant. So what is dielectric constant? चलिए मान लेते हैं कि हमारे दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। एक बार ये फ्री स्पेस में रखे हुए हैं और एक बार ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं। इनके बीच की डिस्टेंस r है जो कि सेम है, इनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज नहीं है। तो मान लीजिए कि ये हमारा वैक्यूम में रखा हुआ है, तो व्हाट विल बी द फोर्स? इट विल बी गिवन बाय दिस। वैक्यूम के लिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट देंगे। और जब ये किसी मीडियम में रखा हुआ है तो जो मीडियम की परमिटिविटी होती है वो वैक्यूम की परमिटिविटी से डिफरेंट होती है। उस केस में हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन। ये हमारा मीडियम की परमिटिविटी है और ये किसकी परमिटिविटी थी? फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो अब हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R। नाउ डिवाइडिंग F vacuum by F medium. You can write it like this: F vacuum upon F medium. ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, बस ये वाला टर्म दोनों में बच जाएगा। तो ये कैसे क्या मिलेगा हमको यहाँ पे रिजल्ट? ये मिल जाएगा। अब इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के जब वैक्यूम में है और जब किसी मीडियम में है, इन दोनों फोर्स के का जो रेशियो है वो परमिटिविटी के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। और इसी चीज को, इसी टर्म एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ही हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं और इसे हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम to free space is known as the dielectric constant. तो अब यहां से मीडियम की परमिटिविटी को हम k टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी लिख सकते हैं। इसका मतलब मीडियम की परमिटिविटी को हम वैक्यूम की परमिटिविटी के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आपको मैं कुछ परमिटिविटी के एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे तो आपको अब मैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और K डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ vacuum is 1. Why it is 1? Because we know the permittivity of vacuum is epsilon naught, and when we will take the ratio, it will cut and it will give 1. So we know that the dielectric constant of vacuum is equal to 1. Dielectric constant of air is equal to 1.00059. In some books, it is also given as 1.00054. Now, the dielectric constant of water is 80. इसका मतलब वाटर की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 80 टाइम्स। मतलब दो चार्जेस के बीच में अगर कुछ फोर्स लग रहा है और उसको हम वाटर में रख दें तो वो फोर्स 80 टाइम रिड्यूस हो जाए। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए भी हम 1 ही लिखते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है आप देखिए तो इट इज नियर टू 1। तो यहाँ पे हम इसको भी जनरली व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स वी कीप इट एज 1। सो आप कई न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि वहाँ पे लिखा होगा कि
it is kept in vacuum or air, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम और एयर इज 1, ऐसा आप कई जगह पे लिखा हुआ देखिए। तो इसी तरह से कई ढेर सारे हमारे एग्जांपल्स हैं। एक और आपको मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, एनी मेटल इज इनफाइनाइट। अब इसका मतलब क्या होता है? We know that the force between 2 point charges which are kept any medium is written as like this. So I already told you that the permittivity can be expressed as the multiple of the permittivity of phase. Now I have told you that the the dielectric constant of metal is infinite. So in place of the multiple we can use infinite, and when we will multiply anything by infinite, this whole term will become infinite. So what will be the force? The force will become 0. मतलब अगर किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई मेटल रख दें तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 0 हो जाए। ओके, नाउ फॉर मोर क्लैरिटी we will solve some examples based on the previous topic. Here a question is given, dielectric constant of a medium is 5. The Coulomb force between the two charges is 20 into 10 to the power minus 2 Newton in free space. Find the force in the medium. बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। इसका मतलब इसकी जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी के 5 टाइम्स है, और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला हमारा कूलम्ब फोर्स दिया हुआ है फ्री स्पेस में, और पूछ रहा है कि उस मीडियम में हमारा फोर्स कितना लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। We know that हम ये जानते हैं, हमने अभी इसको पढ़ा, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। हमको निकालना है मीडियम में वैल्यू, एफ वैक्यूम की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा क्या होता है? यही तो हमारा के होता है। तो के की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5, यानी इसकी वैल्यू पूरी कितनी दी हुई है? 5। अब यहाँ से हम अपना एफ मीडियम निकाल सकते हैं, इसको यहाँ पे ले जाएंगे और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? एफ मीडियम इज इक्वल टू 20 into 10 to the power minus 2 upon 5, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 into 10 to the power minus 2। सो उस मीडियम में लगने वाला फोर्स हमारा कितना है? 4 into 10 to the power minus 2। चलिए अब अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे लेके। तो हियर वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला for permittivity or epsilon. So we know that the force is given by this. Sorry, here we will write epsilon. So epsilon can be written as like this. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या क्या टर्म बचा? हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा Q1 Q2 का। तो इसकी यूनिट क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। Q की यूनिट होती है कूलम्ब, कूलम्ब इनटू कूलम्ब अपॉन फोर्स की यूनिट होती है हमारा न्यूटन, और हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर।
तो यहाँ पे मीटर के लिए स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखिए। अब हमको पता है हमारा चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए किसी भी चीज को फंडामेंटल यूनिट्स में लिखना होता है। तो कूलम्ब को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हमारी करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और टाइम के लिए हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है टी, और एम्पियर के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला में ए ही लिखते हैं। सो ये हो गया। और हमको पता है हमारे जो फोर्स है, फोर्स का हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है ml t टू द पावर माइनस 2। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये कैसे आया, तो देख लीजिए, जिन लोग को नहीं पता है वो लोग देख लें। F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल M, और एक्सीलरेशन के लिए जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है L अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला है फोर्स के लिए वो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने डायमेंशनल फार्मूला को इसमें रख देंगे टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम अपॉन फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला ml t टू द पावर माइनस 2 इंटू मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, तो लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला हमारा होता है L, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो L का स्क्वायर। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। फर्दर अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यहां से A इंटू ए, इट विल गिव एम्पियर स्क्वायर, एंड हियर T इंटू टी, व्हाट इट विल गिव? It will give T square, and below this m L into L square, it will give L cube. So in the denominator we will write m L cube and T to the power minus 2. So now it can be written as, I will write it here, dimensional formula of epsilon is equal to, we will take it upside and we can write it like this again, L cube, so it will be written as like this. Here we have t square and t to the power minus 2 in denominator, so it will come upside and it will become t to the power 4, and again for ampere it will be in the same. So this is the dimensional formula for permittivity. और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डायमेंशनल फार्मूला को लिखते हैं एक ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले m लिखते हैं यानी मास का डायमेंशनल फार्मूला, उसके बाद लेंथ के लिए लिखते हैं, फिर टाइम वाला लिखते हैं, इसके बाद करंट का लिखते हैं। अगर इसके बाद टेम्परेचर भी होता तो इसके लिए हम थीटा अलग से लिखते हैं इसमें। ठीक है, टेम्परेचर के लिए हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? थीटा। तो अगर मान लीजिए इसमें टेम्परेचर का भी टर्म इन्वॉल्व होता तो हम यहाँ पे इसको लिए थीटा भी। ठीक है, तो ये है हमारा डायमेंशनल फार्मूला।